Morning class. Today we are going to start with the magnetic dipole and the earth magnetism. As we all know that magnet is originated from the word magnetite. Magnetite is simply a lodestone which is black in color and it is called the natural magnet. ये एक natural magnet होती है that is simply a kind of stone which is blackish in color and it is solid. तो लॉर्डस्टोन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा. व्हाट द हिस्ट्री बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेट इज देयर. In class 6, 7, 8, I think there is a proper story regarding the origination of the magnet. Magnetic pole and its properties. We know about the magnet. We know that the magnet have two poles, north pole and south pole. So today we are going to discuss about the magnetic poles and its property. The preferred region. It's single F, not a double F. It is the preferred region of attraction near the two end of the magnet. It is the region of attraction near the two end of the magnet where the magnetic force due to a bar magnet is maximum. And this is called the pole of the magnet. Means these are the region near the end of the magnet where the attraction can be experienced and it is a maximum at that particular point, and these points are treated as poles. As we all know, there are two poles, north pole and south pole. Following are the properties of the magnetic pole. Magnetic pole की कुछ fixed property हैं that are listed here. First one is attractive property, that the maximum attraction at the poles. Maximum attraction कहाँ पे होता है? Poles पे होता है. The poles are the near the end of the magnet and exactly at the end, not exactly at the end. Please यहाँ पे आपको correction करना पड़ेगा. Poles are near the end of the magnet and not exactly at the end. Exactly end पे नहीं होते, but they are near to the end of the magnet. Directive property की अगर बात करें, it is related to direction. As we know, the magnetic field line inside a magnet is from north pole to south pole. So when a magnet is suspended freely, it aligns in such a way that the north pole of the magnet is toward the north of the earth. Means magnet का north pole earth की north को indicate करेगा या उसकी तरफ attract होगा. Whereas the south pole of the magnet is toward the south pole of the south of the earth. So it is aligning itself toward the geographical north and south pole. Unlike poles attract and the like poles repel. It is a basic property that you learn from the class 6. Next is magnetic pole exist in pair. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं that exist in pair, that is never the monopole exist, or we can say that monopole does not exist. There should be doesn't exist. Monopole कभी exist नहीं करता. Why it is not existing? इसके लिए आपने पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर. इफ द मोनोपोल एग्जिस्ट देन two magnetic field lines are causing to each other at the same point, which is not possible. जो आपने पढ़ा था, that property is there. So monopole does not exist. There is another term which is called inductive property. When a piece of a substance such as soft iron, steel, cobalt, nickel, etc. is placed near a bar magnet, it acquires magnetism. जब भी हम क्या करते हैं, किसी पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा इज प्लेस्ड नियर द bar magnet, it acquires a magnetism. उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? अपने आप डेवलप हो जाती है.
Next one is repulsion is the surest test to distinguish between a magnet and an ion. Repulsion को surest test कहते हैं. This is the example that generally asked for 1 marks test. कि 1 marks test के अंदर या 1 marks question में आपसे पूछ सकता है why repulsion is the surest test to distinguish between an ion and a magnet. Magnet or ion both are the same in color. So how we can differentiate between that magnet is there or ion is there? Then simple सा logic is there कि if we take a magnet and brings another magnet closer to it, so if they are of the same pole, there is obviously repulsion. If they are opposite pole, there is attraction. But when an iron piece is being closer to a magnet, it always attracts. It doesn't depend whether it is a south pole or a north pole. बिकॉज आप एक मैग्नेट को उसके क्लोज लेके जा रहे हैं, आयरन को मैग्नेट के क्लोज लेके जा रहे हैं, आयरन के अंदर कोई पोल जनरेशन तो होता नहीं है. सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग इट क्लोजर टू दैट मैग्नेट, इट ऑलवेज अट्रैक्ट. सो अगर मुझे एक मैग्नेट को एक आयरन से डिफरेंशिएट करना है तो बेस्ट वे इज टू ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोजर टू अ मैग्नेट. एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के क्लोज लेके आना है, ना कि आप किसी आयरन पीस को मैग्नेटिक क्लोज लेके आएंगे. बिकॉज अगर आयरन पीस मैग्नेटिक क्लोज आएगा, देयर इज श्योरली अट्रैक्शन. वहां पे हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, कभी रिपल्सन हो ही नहीं सकता. तो वी कांट जस्टिफाई दैट द सब्सटेंस इज मैग्नेट और नॉट. तो अगर मुझे मैग्नेट्स का पता लगाना है तो मुझे एक दूसरी मैग्नेट लेके आनी पड़ेगी नियर टू द फर्स्ट मैग्नेट. एंड इफ फॉर द वन टाइम अगर वो अट्रैक्शन कर रहा है, तो अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं या मैग्नेट को ओरिएंटेशन को रिवर्स कर दूं, देयर मस्ट बी अ रिपल्सन. और अगर रिपल्सन हुआ, दैट इज अ श्योरेस्ट, that ensure that ki this is a magnet. Moving to the next slide. The next slide is about the atomic view of the magnetism. Just like we discuss about an atom. Atom का जब हम discussion करते हैं तो we studying about the electron like something. तो जब हम किसी एटम के व्यू में इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ मूवमेंट. इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी एटम के अंदर मूवमेंट करता है, एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इज जनरेशन ऑफ करंट डेवलप होता है. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा जब व्हेनेवर देयर इज अ मोशन of the electron, that means there is a current, there is a development of the magnet. So the Weber molecular theory of the magnetism modified by the Ewing. वेबर ने जो आपकी मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी मैग्नेटिज्म को, उसको इविंग ने क्या किया? मॉडिफाई किया. तो अकॉर्डिंग टू इविंग क्या था? द मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस whether magnetized or not magnetized all are complete magnet. वेबर थ्योरी में मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया था? दे आर जस्ट द चार्ज पार्टिकल्स. लेकिन इविंग ने क्या कहा? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. उसने कहा कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे वो मैग्नेटाइज है या अनमैग्नेटाइज है, इन बोथ द कंडीशन जो मॉलिक्यूल्स होंगे विद इन दैट सब्सटेंस इज बिहेविंग एज ए कंप्लीट मैग्नेट. फॉर एन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल अगर हम बात करें कि एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल अगर आपको दिया जा रहा है, देन द मॉलिक्यूलर मैग्नेट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. जस्ट लाइक लुक एट दिस फिगर. इफ वी सपोज दैट जो टेल है वो आपका नॉर्थ पोल है एंड हेड जो है वो आपका साउथ पोल है. इफ इट इज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो ऑब्वियसली एक जो आपका मैग्नेटिक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मैग्नेटिक मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन होगा इन सच ए वे दैट साउथ पोल ऑफ वन इज कनेक्टेड विद द नॉर्थ पोल ऑफ द सेकंड वन. तो वो क्या कर रहे हैं? इस तरह से एक दूसरे को अरेंज कर गए ताकि एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर गए? नलिफाई कर गए. In the next figure, you can see the same situation is there. The south pole of one is connected to the north pole of the another. So they neutralize the effect of each other. So if it is an magnetized material, molecular magnet neutralize the effect of each other. The material exhibit zero magnetism. But in the case of magnetized molecule, अगर हम बात करें magnetized molecule, all the magnetic molecules, जितने भी molecular structure होंगी, जितनी भी molecules की structure होंगी या स्मॉल मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे? दे अलाइन टू द फिक्स डायरेक्शन.
फिक्स डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये आपका साउथ पोल है और ये जो नॉर्थ पोल है, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बट एट दी पॉइंट अगर मैं देखूं, ये फर्स्ट जो फेज था यहाँ पे, वो सभी क्या थे, सेम पोलैरिटी के थे, और जो लास्ट एंड आएगा वो भी क्या है, सेम पोलैरिटी के। मतलब अगर मैं सारे ही मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लूं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन एट द फेस, एंट्री फेस एंड एट द एग्जिट फेस, देयर मस्ट बी सम टोटल पोल्स। कुछ टोटल चार्ज वहां पे रहेगा, कुछ टोटल पोलैरिटी वहां पे रहेगी, आइदर इट इज नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी। तो एंड्स पे क्या होगा, यहाँ पे पोल्स डेवलपमेंट होना फिक्स्ड है। For the magnetized material, simply a bar magnet, the molecular magnets are aligned in the same direction. Now, the next term is Coulomb's law in magnetism. Just like Coulomb's law हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, तो उसी तरह से हम Coulomb's law को पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के लिए। Suppose we have a magnet which has two magnetic pole, and each one having a magnetic strength of magnetic pole strength as M1 and M2. Just like वहां पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल थे Q1 and Q2, here we have magnetic pole strength M1 and M2 and are separated by a distance of r apart. Suppose that two M's are separated by a distance small r. The force of attraction or repulsion between the two poles, because the poles are there, हम ये नहीं पता हमें कि दोनों पोल हैं आपके, दे आर आइदर द सेम पोलैरिटी या द रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, हमने दो मतलब आपके मैग्नेटिक पोल लिए हैं एंड वी डू नॉट नो कि विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज देयर, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, बट देयर इज स्ट्रेंथ। सो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इट वाज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर is proportional to m1 m2 divided by r square, and finally f is equal to k times of m1 m2 divided by r square, where k is proportionality constant. This proportionality constant can be treated as k is equal to mu naught by 4 pi, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा है कि जो आपका वहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, उसी की एक रिलेशन यहाँ पे यूज की है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, where mu naught is absolute permittivity of the free space. ठीक है, वहां पे हम यूज करते थे एक डिफरेंट कैटेगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहाँ पे एप्सिलॉन 0 आता था, यहाँ पे म्यू नॉट आएगा, वहां पे वो थी परमिटिविटी और यहाँ पे है परमिएबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा k is equal to mu naught divided by 4 pi and its value is 10 to the power minus 7 वेबर, WV वेबर है पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, हाउ यू कुड गेट दिस वैल्यू, इस वैल्यूज की आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, अगर हम न्यूमेरिकल टर्म को छोड़ भी दें तो भी हमें यूनिट्स का पता कैसे लगेगा। तो एक सिंपल लॉजिक क्या है, यू हैव टू यूज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट को यूज करेंगे एंड आर स्क्वायर यूज करेंगे एंड देन उसकी वैल्यूज की हेल्प से हम म्यू नॉट की डायमेंशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड उसकी हेल्प जो भी आपकी म्यू नॉट की डायमेंशन होगी या यूनिट होगी, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ के। ठीक है, क्योंकि 4 पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो जो भी म्यू नॉट की डायमेंशन आएगी या म्यू नॉट की यूनिट आएगी, दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर के। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको यूनिट्स निकाल के बताई गई है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कैसे निकालनी है। सपोज हमें एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं दैट इन ए बार मैग्नेट द पोल्स पे जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज आइडेंटिकल बट अपोजिट इन नेचर। हम यही तो मानते हैं कि जो पोल होता है, एक बार मैग्नेट जो होता है उस पर जो दो पोल होते हैं, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हम इक्वल मानते हैं बट अपोजिट इन नेचर, वन इट इज साउथ पोल एंड अनदर इट इज नॉर्थ पोल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ml कर दिया। सपोज किया दैट लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, जो स्ट्रेंथ पोल है आपके पास, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है एंड टोटल फोर्स इज 10 to the power 7 न्यूटन। देन use that formula, F is equal to mu naught by 4 pi into m1 m2 divided by r square and substitute the relation there. तो 10 to the power minus 7 is equal to mu naught by 4 pi की relation तो पता ही थी, 10 to the power minus 7 and then आपने क्या किया, m1 m2 जो कि स्ट्रेंथ है उसको मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। You got this relation m square is equal to what?
that means m is equal to plus minus 1, means the strength is equal but opposite in nature. ठीक है, m हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा बट अपोजिट इन नेचर. दोनों पोल पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा बट अपोजिट इन नेचर. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द यूनिट, देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज नथिंग बट एम्पियर मीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल. अब हमने देखा कि एक बार मैग्नेट में दो पोल हो गया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. अब मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे. व्हाट द मैग्नेटिक डाइपोल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई टू द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल और द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. सिमिलरली हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी डिफाइन करेंगे. It's an arrangement of two magnetic pole of equal in magnetic strength, opposite in the opposite strengths की होती है, equal in magnitude but opposite in strength, separated by a finite distance, is called a magnetic dipole. अब कितना डिस्टेंस होता है, that particular distance is nothing but magnetic length. The distance between the two poles of the magnet is called the magnetic length of the magnet. It is a vector quantity, so we have taken as 2L vector. Vector क्यों लिया है, because it's a length. पहली बात तो ये L जो है एक length term है and it is indicating a particular direction, so we have to treat length as a vector term here. This is called the magnet length or magnetic length. Note here that the magnetic length is always less than the geometric length. Geometric length क्या है, end to end of the bar magnet. बार मैग्नेट के एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है. और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, वन पोल से सेकंड पोल तक, लाइक साउथ पोल से नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल टू पोल डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नेटिक लेंथ होगा और एंड टू एंड जो होगा वो ज्योमेट्रिक लेंथ होता है. तो हमने यहाँ मैग्नेटिक लेंथ की बात की है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ज्योमेट्रिक लेंथ. तो दिस इज नथिंग बट 12 वेक्टर. अब हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आप फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल मल्टीप्लाई टू द मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ. द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस लेंथ इज ए वेक्टर टर्म. क्योंकि लेंथ एक वेक्टर टर्म है इसलिए आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या बन जाएगा, एक वेक्टर टर्म बन जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो होता है उस पे तो कोई वेक्टर आता नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यू कैन इजीली फाइंड एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा. कैसे है वो आप पीछे वाले इक्वेशन को देख सकते हैं, बिकॉज m into 2L, m is एम्पियर मीटर into मीटर because of the length, so you got ampere meter square. Now the next point is current loop as a magnetic dipole. यहाँ पे सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं वी हैव टेक अ रिंग. हमने क्या किया, एक रिंग एज्यूम की है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस ब्लू कलर रिंग इज देयर व्हिच इज सर्कुलर रिंग दैट शोज कि यहाँ पे एक सर्कुलर आपने करंट कैरिंग लूप क्रिएट किया है एंड इन विच द करंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ यू हैव टू यूज योर राइट हैंड थंब रूल. आपको यहाँ पे यूज करना है राइट हैंड थंब रूल आप यूज करेंगे, या फिर आप क्या करते हैं, यू आर यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. इफ करंट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, होल्ड योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देखेंगे आपकी जो फिंगर्स हैं इट इज इन सच अ वे दैट अगर मैं इसको नीचे से देखना स्टार्ट करूं तो ये आपका एक पर्टिकुलर कर्व बनाएंगी दैट इज शोइंग दैट की फ्रॉम द बॉटम फेस इट इज इनवर्ड एंड अपर फेस पे ये आउटवर्ड दिखाई देंगी. मतलब नीचे वाले फेस से देखा जाए तो ये ऐसा लगेगा कि ये एंट्री कर रही है, ऊपर वाले फेस से वो एग्जिट कर रही है. दैट पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज शोन टू द बोथ साइड. नाउ यू कैन सी दैट व्हेन इट इज क्लोजर टू द लेंथ एलिमेंट, अगर मैं एक पर्टिकुलर लेंथ एलिमेंट एज्यूम कर रहा था इस पर्टिकुलर रिंग का, तो उसके जितना मैं नियर बाय रहूंगा इट इज सर्कुलर इन शेप, बट एज द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज द कर्व सरफेस इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. धीमे धीमे कर्व सरफेस क्या होगा आपका एक्सटेंड होगा है
and at the center of the coil it becomes a straight line. तो ऐसी जब हर एक पॉइंट से, अभी तो हमने यहाँ पे केवल 2 डायगोनल पॉइंट को ट्रीट किया, अगर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को ट्रीट करूं एंड सबकी मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे ला करके मैं क्या कर दूं, सम अप कर दूं, देन दैट सेंट्रल लाइन इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट. इसका बिहेवियर कैसा बन जाएगा, एज ए बार मैग्नेट बन जाएगा. एंड वी नो दैट the point where the magnetic field line originate or exit is treated as a north pole, and where it behaving as a entry point, it behave as a south pole. So it is quite clear that the north pole and south pole of a bar magnet, you can treat it just using a circular loop current carrying conductor आप ले सकते हैं, and उसके हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं which phase is behaving as a north pole and which is behaving as a south pole. If it is moving, current is moving in a anti-clockwise direction, the upper phase is north pole and lower phase is south pole. And if we reverse the direction of the current, then the polarity will getting reversed. So I'm not going to deep in that. Here the current carrying coil behave as a magnetic dipole. As the magnetic dipole of the current loop की अगर बात की जाए तो ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन directly upon the amount of current. As the amount of current is going to be increased, the magnetic dipole strength is going to be increased, and therefore the magnetic dipole moment is increasing. Second point आपका क्या है, that M is proportional to area. जो magnetic dipole moment होता है, it is proportional to the area of the circular coil. जो circular loop आप ले गए उसका जो area होगा, it is also proportional to the magnetic dipole moment. So when we combine these two, magnetic dipole moment is proportional to I times of A, and when we remove this proportionality there must be a constant term which is nothing but K, proportionality constant. इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट फिगर बनाई है which shows a circular coil having current I in clockwise direction, anti-clockwise direction, which creates a magnetic field at the center of the coil, which is in upward direction. Dipole electric आपका magnetic dipole बनेगा which is showing a magnetic dipole moment in upward direction, and it is equal to I times of area vector. Area is treated as a vector term here because कि magnetic से जो dipole moment है वो एक खुद vector है, and vector quantity must be equate with the vector terms. I एक vector quantity नहीं है, so area must be a vector term. K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था इफ द वैल्यू ऑफ K इज सपोज टू बी 1 इन सिस्टम ऑफ यूनिट. अगर K की वैल्यू 1 हो जाती है देन M इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ A. M इक्वल टू IA. The upper phase of the coil is acting as a north pole and the lower phase of the coil act as a south pole. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. Thus M vector acts perpendicular to the plane of the current. ठीक है, ऊपर वाला एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर लूप. सो इन वेक्टर फॉर्म M वेक्टर इज इक्वल टू I इनटू A वेक्टर वेयर A इज एरिया वेक्टर. अगर ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिए जाए, लाइक सिंगल लूप था, ऐसे ही नंबर ऑफ लूप्स आपको अगर दे दिए जाए तो हर एक लूप एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, एंड सारे लूप का अमाउंट अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएगी, n टाइम्स ऑफ IA. n represent the number of loops, I is the current in each loop and A is the area. So we can treat it as ampere turn. n और I को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, I is what, current in a single loop, n is number of turn, so it becomes ampere turn into area of the circular coil for a single loop. Next slide number 5. Magnetic dipole moment of the magnetic dipole moment of a revolving electron. Atom such the magnetic dipole. अब एटम को एज ए मैग्नेटिक डाइपोल ट्रीट किया गया है. एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व करता है. एज केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. So electron, if electron revolves around the nucleus, it is considered as a small current too.
इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, स्मॉल करंट लूप जैसा बिहेवियर हो जाएगा। सो इट मस्ट पजेस दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे डायरेक्शन जो ली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है। देयरफॉर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, वहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होगा। इफ वी अज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो देयर मस्ट बी एन एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू L equal to m.e. mass of electron, v is the velocity of electron and r is the radius of the circle। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। एंड एज वी नो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर L वेक्टर x along normal to the plane of the electron orbit in upward direction। Now suppose if it takes t times to complete one rotation, अगर उसका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T है, तो कैन वी फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। देन वी हैव टेकन E by 1/T। E is the charge of the electron and T is the time period for completing one rotation। So number now the period of revolution अगर आपको निकालना होगा कि इलेक्ट्रॉन को कितना पीरियड लग जाता है एक बार रिवोल्यूशन करने में, then T is equal to 2 pi r divided by v, nothing but circumference divided by velocity is your time period। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we just substitute the value of I is E by E into 1/T। तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे I की वैल्यू निकालने के लिए, T हम निकाल सकते हैं which is 2 pi v r by divided by v। इस T को हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में which is I equal to E 1/T and we have I is equal to EV divided by 2 pi r। This becomes the equation for the current। Now मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे करंट चाहिए होता है एंड एरिया चाहिए होता है। नाउ द एरिया ऑफ द लूप इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। कमिंग टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन व्हिच इज नथिंग बट करंट इनटू एरिया। तो यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड ले गए हैं, स्केलर टर्म्स को यूज कर रहे हैं, वेक्टर टर्म को यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हमने वेक्टर को इग्नोर किया है टू सिंप्लीफाई द रिलेशन। m is equal to I times of a which is nothing but I की रिलेशन डाली है EV divided by 2 pi r और a की रिलेशन डाली है which is pi r square। The answer comes to EV r divided by 2। So अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो we have to take the consideration of the charge। हमें इलेक्ट्रॉन का नेचर देखना पड़ेगा which is nothing but negative in nature, आपको पता ही है। तो m वेक्टर is nothing but minus of E divided by 2me into L वेक्टर in वेक्टर फॉर्म आप निकाल सकते हैं इसको। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विद लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक रिलेशन है जो एंगुलर मोमेंटम को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से लिंक करती है। एंड वी रिमेंबर दैट माइनस टाइम्स ऑफ E by me, दैट इज me is the mass of electron and E is the charge on electron। The negative sign shows that electron has a negative charge। Coming to the next page, now using the Bohr theory। Bohr theory क्या थी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। If an electron is moving in a particular orbit, the angular momentum is given by integral multiple of h by 2 pi। तो वही हमने यहाँ पे रिलेशन यूज किया है, L is nothing but n times of h by 2 pi where n is number of orbit। आप देखते हैं 1 2 3 करके आप निकालते हैं ऑर्बिटल नंबर के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आपके लिए है। तो कैपिटल M आप कैसे निकालेंगे, इट इज नथिंग बट E by 2 pi me into कैपिटल L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई है which is nothing but ns divided by 2 pi and solving this we have n is taken as outside EH divided by 4 pi me। ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, EH divided by 4 pi me को n से सेपरेट कर दिया गया। ये केवल इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहले हमें एक टर्म निकालने को आएगा बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन आपने क्लास 11th में पढ़ा है और यहाँ पे भी आपको मिलेगा एंड इट्स अ लाइक बेसिक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आता है, वो बोर मैग्नेटॉन होता है आपके लिए। आपको ये सारी डेरिवेशन नहीं करनी होगी, आपको सिंपली बोर मैग्नेटॉन दिया जाएगा। तो बोर मैग्नेटॉन एक्चुअली है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज नथिंग बट इक्वल टू m, कैपिटल M, associate with an atom due to the orbital motion of the electron in the first orbit of hydrogen atom।
अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट लूंगा हाइड्रोजन एटम का और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देन उसका जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. दैट मींस m इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ b. मतलब m तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था और म्यू नॉट b क्या था आपका बोर मैग्नेटॉन था. बोर मैग्नेटॉन इज अ स्पेशल कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए केस होता है दैट इज बोर मैग्नेटॉन. एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर equation, we got this relation 9.27 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये आपका बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू है. ये एग्जाम के अंदर बेसिकली आती ही रहती है बोर मैग्नेटॉन. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं विच इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इफ देयर इज अ चार्ज तो स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन यू कैन फील व्हेन गोइंग अनदर चार्ज पार्टिकल. ये पढ़ा था आपने कि एक चार्ज पार्टिकल के पास अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके जाते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करता है या वो रिपेल करता है. एंड दिस शोज उसके आसपास क्या एक स्पेस जनरेट हो रहा है. सिमिलरली हम मैग्नेट के लिए करते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट. एक मैग्नेट के आसपास का स्पेस या एक करंट कैरिंग एलिमेंट के आसपास का वो स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. either it is repulsion or attraction, I don't know कि repulsion होगा या attraction होगा, but their magnetic effect can be experienced. मतलब अगर मैं कंपास लेके जाऊंगा तो there must surely be a deflection. It is called the magnetic field. जैसे कि आपने क्लास 10th में एक्सपेरिमेंटली देखा भी होगा when we take iron fillings and जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो they arrange themselves that shows magnetic field line. और जब मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं तो it must show some deflection there. The SI unit of the strength of the magnetic field. Strength of magnetic field की अगर बात करें जो कि nothing but a small m था, sorry capital M capital B की बात करें, strength की बात करें magnetic field, वो जो small m था magnetic pole strength था. This is the strength of magnetic field, not the pole. तो अगर इसकी बात करें which is nothing but capital B is also known as magnetic induction or magnetic flux density. ध्यान रखिएगा magnetic flux density. It's a special word given to the magnetic field line. Magnetic flux density. Flux, you know that well. Number of field line crossing a unit area. ठीक है, that is nothing but flux density. Magnetic flux होता है. तो यहाँ पे इसको density की टर्म में लिखा गया है. So there is a unit Tesla. Tesla is nothing but equal to 1 Newton per ampere per meter. ठीक है. अब न्यूटन को अगर वेबर में कन्वर्ट किया जाए तो इट बिकम्स न्यूटन एम्पियर, इट बिकम्स 1 वेबर मीटर स्क्वायर. कैसे आएगा? तो अगर आपको न्यूटन से वेबर में जाना है तो 1 वेबर इज नथिंग बट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. ऐसी एक रिलेशन बनेगी. तो वो आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं वेबर और न्यूटन के बीच में, वो आपके लिए बेटर रहेगा. तो उसके बाद आप टेस्ला डिस्कवर कर सकते हैं. वन मोर यूनिट यू नो वेल दैट इज गॉस. आपको एक और यूनिट पता होगा मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज गॉस. एंड गॉस इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 टाइम्स ऑफ टेस्ला. टेस्ला आपकी स्मॉल यूनिट है एंड गॉस जो है आपकी बिग यूनिट है. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. This is the magnetic field on the axial line of the bar magnet. Just like you have discussed about the electric field on a इलेक्ट्रिक डाइपोल में, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, स्ट्रेंथ निकाली थी. उसी तरह से आप एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे. तो here we have taken a bar magnet with north pole and south pole having a pole strength small m and small m equal in magnitude but opposite in character, having a distance between the two poles as 2l, and we have taken a point P on the axial line from the magnet which is directing toward the x. ठीक है, x एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी तरफ आपने कहीं मिड में कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल. दोनों पोल का उस पर इम्पैक्ट होगा. जस्ट लाइक आपके पास चार्ज पार्टिकल का होता था प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का, यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का इम्पैक्ट होगा.
Let P be a point on the axial line of the magnet at a distance of r from the center of the magnet. Small r is the distance from the center to the point P. तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी बी एक्सियल जो होगा एट पॉइंट P is due to the contribution of B1 and B2. B1 is the magnetic field due to north pole and B2 is the magnetic field due to south pole. तो एक नॉर्थ पोल का कंट्रीब्यूशन है, एक साउथ पोल का कंट्रीब्यूशन है. तो नॉर्थ पोल का कंट्रीब्यूशन क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर था. अब ये r क्या था, डिस्टेंस था. किस किस के बीच में, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन n टू p. यहाँ से n से लेके p तक का डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपका होगा p पॉइंट और जो आपका पोल था उसके बीच का डिस्टेंस. तो np इज नथिंग बट कैपिटल, जो आपका स्मॉल r दिया उसमें से अगर लेंथ कम कर दी जाए, हाफ द लेंथ कम कर दी जाए, देन यू गॉट np. तो यहाँ पे आपने r माइनस एल का स्क्वायर इसीलिए यूज किया है. एंड इट इज अलोंग px. ये px के अलोंग है क्या चीज, b1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल. सेकंड अगर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, इट कम्स टू बी mu naught by 4 pi m divided by sp square, which is nothing but mu naught by 4 pi m divided by r plus l का square along the ps. तो one is along px, another is along ps. आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल ने px के अलोंग निकाला है, साउथ पोल ने ps के अलोंग निकाला है. ऑब्वियसली जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो जिसका स्ट्रेंथ कम है उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम, जिसका लेंथ कम होगा उसका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक लेस नंबर आएगा. एंड अगर आपका डिफरेंस आपका लेस आएगा तो उसका स्क्वायर भी लेस होगा. एंड यू गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b1 एज कंपेयर टू b2. एंड आल्सो b1 इज ग्रेटर देन b2. b1 and b2 acts along the same line but opposite in direction. So total axial field अगर आप निकालेंगे, total magnetic field on the axial line is nothing but greater minus smaller. The greater is b1 and smaller is b2. दोनों का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, बट टोटल फील्ड इज अलोंग px. क्यों, क्योंकि जो आपका b1 था इट इज ग्रेटर देन b2. एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू mu naught by 4 pi, कीपिंग m एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, एंड 1 by r minus l का स्क्वायर minus 1 by r plus l का स्क्वायर, एंड टेकिंग द एलसीएम पार्ट. तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है mu naught by 4 pi into m 4 r l डिवाइड by r स्क्वायर minus l स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. ठीक है, नीचे l minus a minus b और a minus b और a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर minus b स्क्वायर आपके पास ये टर्म आ जाएगी. ठीक है, अब देखिए इस पूरे इक्वेशन के अंदर अगर इफ आई हैव टेकन दैट 2l, 4l को आप 2l into 2 मान लीजिए एंड क्या स्मॉल m को भी साथ ऐड कर दीजिए, देन कैपिटल M इज इक्वल टू m into 2l हो जाएगा. तो पूरी इक्वेशन को हमने कैपिटल M में कन्वर्ट कर दिया. इट बिकम्स b axial इज इक्वल टू mu naught by 4 pi into 2m, कैपिटल M ध्यान रखिएगा, 2 कैपिटल M r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग px. This is the magnetic field strength in term of magnetic dipole moment. Magnetic field strength को magnetic dipole moment के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है for an axial bar magnet, for the axial line of a bar magnet. स्पेशल केस अगर हम देखें तो स्पेशल केस था when the length is very dipole is very short. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. In the vector form, b axial is nothing but mu naught by 4 pi and 2m vector r divided by r square minus l square to the whole square. When the bar magnet is very small in length, again come back to the same point. जब आपका bar magnet की length आपकी point of observation से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा. That means small l जो था it is very very small than r. Then this becomes mu naught by 4 pi 2m r divided by r to the power 4. r से r कैंसिल हो जाएगा, it becomes mu naught by 4 pi 2m divided by r की क्यूब. तो जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी, उसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप निकाल गए, which is mu naught by 4 pi 2m times 2m divided by r की क्यूब. So today I am going to stop it here. नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए हमने पढ़ा है केवल एक्सियल लाइन का. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का केस पढ़ेंगे. तो आई एम स्टॉपिंग इट हियर.